براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. اے اہل اسلام، اب خدا اور اس کے رسول کی طرف سے مشرکوں سے جن سے تم نے عہد کر رکھا تھا بیزاری اور جنگ کی تیاری ہے، تو مشرکو تم زمین میں 4 مہینے چل پھر لو اور جان رکھو کہ تم خدا کو عاجز نہ کر سکو گے، اور یہ بھی کہ خدا کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم۔ اور حج اکبر کے دن خدا اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ خدا مشرکوں سے بیزار ہے اور اس کا رسول بھی ان سے دستبردار ہے، بس اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر نہ مانو اور خدا سے مقابلہ کرو تو جان رکھو کہ تم خدا کو ہرا نہیں سکو گے، اور اے پیغمبر کافروں کو دکھ دینے والے عذاب کی خبر سنا دو۔ إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين۔ البتہ جن مشرکوں کے ساتھ تم نے عہد کیا ہو اور انہوں نے تمہارا کسی طرح کا قصور نہ کیا ہو اور نہ تمہارے مقابلے میں کسی کی مدد کی ہو، تو جس مدت تک ان کے ساتھ عہد کیا ہو اسے پورا کرو کہ خدا پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے۔ فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم۔ جب عزت کے مہینے گزر جائیں تو مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کر دو اور پکڑ لو اور گھیر لو، اور ہر گھات کی جگہ ان کی طاق میں بیٹھے رہو، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے لگیں تو ان کی راہ چھوڑ دو، بے شک خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ۔ كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين۔ اور اگر کوئی مشرک تم سے پناہ کا خواستگار ہو تو اس کو پناہ دو یہاں تک کہ کلام خدا سننے لگے، پھر اس کو امن کی جگہ واپس پہنچا دو، اس لیے کہ یہ بے خبر لوگ ہیں۔ بھلا مشرکوں کے لیے جنہوں نے عہد توڑ ڈالا خدا اور اس کے رسول کے نزدیک عہد کیوں کر قائم رہ سکتا ہے؟ ہاں، جن لوگوں کے ساتھ تم نے مسجد محترم یعنی خانہ کعبہ کے نزدیک عہد کیا ہے، اگر وہ اپنے عہد پر قائم رہیں تو تم بھی اپنے قول و قرار پر قائم رہو، بے شک خدا پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے۔ كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون۔ اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون۔ فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون۔ بھلا ان سے عہد کیوں کر پورا کیا جائے جب ان کا یہ حال ہے کہ اگر تم پر غلبہ پالیں تو نہ قرابت کا لحاظ کریں نہ عہد کا، یہ منہ سے تو تمہیں خوش کر دیتے ہیں لیکن ان کے دل ان باتوں کو قبول نہیں کرتے اور ان میں اکثر نافرمان ہیں۔ یہ خدا کی آیتوں کے عوض تھوڑا سا فائدہ حاصل کرتے اور لوگوں کو خدا کے رستے سے روکتے ہیں۔ کچھ شک نہیں کہ جو کام یہ کرتے ہیں برے ہیں۔ یہ لوگ کسی مومن کے حق میں نہ تو رشتہ داری کا پاس کرتے ہیں نہ عہد کا، اور یہ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔
अगर ये तौबा कर लें और नमाज पढ़ने और ज़कात देने लगें तो दीन में तुम्हारे भाई हैं, और समझने वाले लोगों के लिए हम अपनी आयतें खोल खोल कर बयान करते हैं। وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين। और अगर अहद करने के बाद अपनी कस्मों को तोड़ डालें और तुम्हारे दीन में ताने करने लगे तो इन कुफ्र के पेशवाओं से जंग करो। ये बेईमान लोग हैं और इनकी कस्मों का कुछ एतबार नहीं। अजब नहीं कि अपनी हरकत से बाज आ जाएं। भला तुम ऐसे लोगों से क्यों न लड़ो जिन्होंने अपनी कस्मों को तोड़ डाला और पैगंबर खुदा के जिला वतन करने का अज़्म मुसम्मम कर लिया और उन्होंने तुमसे अहद शिकनी की इब्तिदा की। क्या तुम ऐसे लोगों से डरते हो? हालांकि डरने के लायक खुदा है, बशर्ते के ईमान रखते हो। उनसे खूब लड़ो, खुदा उनको तुम्हारे हाथों से अजाब में डालेगा और रुस्वा करेगा और तुमको उन पर गलबा देगा और मोमिन लोगों के सीनों को शिफा बख्शेगा। ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون। और उनके दिलों से गुस्सा दूर करेगा और जिस पर चाहेगा रहमत करेगा और खुदा सब कुछ जानता और हिकमत वाला है। क्या तुम लोग ये ख्याल करते हो कि बेआजमाइश छोड़ दिए जाओगे? और अभी तो खुदा ने ऐसे लोगों को मुतमय्यज किया ही नहीं जिन्होंने तुम में से जिहाद किए और खुदा और उसके रसूल और मोमिनों के सिवा किसी को दिली दोस्त नहीं बनाया और खुदा तुम्हारे सब कामों से वाकिफ है। मुशरिकों को ज़ेबा नहीं कि खुदा की मस्जिदों को आबाद करें जबकि वो अपने आप पर कुफ्र की गवाही दे रहे हों। इन लोगों के सब आमाल बेकार हैं और ये हमेशा दोज़ख में रहेंगे। إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين। खुदा की मस्जिदों को तो वो लोग आबाद करते हैं जो खुदा पर और रोज़े क़यामत पर ईमान लाते और नमाज पढ़ते और ज़कात देते हैं और खुदा के सिवा किसी से नहीं डरते। यही लोग उम्मीद है कि हिदायत याफ्ता लोगों में दाखिल हों। क्या तुमने हाजियों को पानी पिलाना और मस्जिद मोहतरम यानी खाना काबा को आबाद करना उस शख्स के आमाल जैसा ख्याल किया है जो खुदा और रोज़े आखिरत पर ईमान रखता है और खुदा की राह में जिहाद करता है? ये लोग खुदा के नजदीक बराबर नहीं है और खुदा जालिम लोगों को हिदायत नहीं दिया करता। الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم। जो लोग ईमान लाए और वतन छोड़ गए और खुदा की राह में माल और जान से जिहाद करते रहे, खुदा के यहाँ उनके दर्जे बहुत बड़े हैं और वही मुराद को पहुँचने वाले हैं। उनका परवरदिगार उनको अपनी रहमत की और खुशनुदी की और बहिश्तों की खुशखबरी देता है जिनमें उनके लिए नेमत आए जावेदानी है।
और वो उनमें अबदुल आबाद रहेंगे। कुछ शक नहीं कि खुदा के यहाँ बड़ा सिला तैयार है। يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين। ऐ अहले ईमान, अगर तुम्हारे माँ बाप और बहन भाई ईमान के मुकाबिल कुफ्र को पसंद करें तो उनसे दोस्ती न रखो, और जो उनसे दोस्ती रखेंगे वो जालिम हैं। कह दो कि अगर तुम्हारे बाप और बेटे और भाई और औरतें और खानदान के आदमी और माल जो तुम कमाते हो और तिजारत जिसके बंद होने से डरते हो और मकानात जिनको पसंद करते हो खुदा और उसके रसूल से और खुदा की राह में जिहाद करने से तुम्हें ज्यादा अजीज हो तो ठहरे रहो, यहाँ तक कि खुदा अपना हुक्म यानी अजाब भेजे, और खुदा नाफरमान लोगों को हिदायत नहीं दिया करता। لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم। खुदा ने बहुत से मौकों पर तुमको मदद दी है, और जंग हुनैन के दिन जबकि तुमको अपनी जमात की कसरत पर गुर्रा था तो वो तुम्हारे कुछ भी काम न आई, और जमीन बावजूद इतनी बड़ी फराखी कि तुम पर तंग हो गई, फिर तुम पीछ फेर कर फिर गए। फिर खुदा ने अपने पैगंबर पर और मोमिनों पर अपनी तरफ से तस्कीन नाजिल फरमाई, और तुम्हारी मदद को फरिश्तों के लश्कर जो तुम्हें नजर नहीं आते थे आसमान से उतारे, और काफिरों को अजाब दिया, और कुफ्र करने वालों की यही सजा है। फिर खुदा उसके बाद जिस पर चाहे मेहरबानी से तवज्जो फरमाए, और खुदा बख्शने वाला मेहरबान है। يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم। मुशरिक तो पलीद हैं, तो इस बरस के बाद वो खाना काबा के पास न जाने पाएं, और अगर तुमको मुफलिसी का खौफ हो तो खुदा चाहेगा तो तुमको अपने फजल से गनी कर देगा। बेशक खुदा सब कुछ जानता और हिकमत वाला है। قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون। जो लोग अहले किताब में से खुदा पर ईमान नहीं लाते और ना रोज़े आखिरत पर यकीन रखते हैं और ना उन चीजों को हराम समझते हैं जो खुदा और उसके रसूल ने हराम की है और ना दीन हक को कबूल करते हैं, उनसे जंग करो यहाँ तक कि जलील होकर अपने हाथ से जिजिया दे। और यहूद कहते हैं कि उजैर खुदा के बेटे हैं और ईसाई कहते हैं कि मसीह खुदा के बेटे हैं। ये उनके मुंह की बातें हैं। पहले काफिर भी इसी तरह की बातें कहा करते थे, ये भी उन्हीं की रीस करने लगे हैं। खुदा इनको हलाक करे, ये कहां बह के फिरते हैं। इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबन मिन दूनिल्लाहि वल मसीह इब्न मरयम वमा उमिरू इल्ला लियअबुदू इलाहन वाहिदा ला इलाहा इल्ला हु सुब्हानहु अम्मा युश्रिकून।
युरीदून अन युत्फिऊ नूर अल्लाह बिअफ़वाहिहिम वयअबा अल्लाहु इल्ला अन युतिम्म नूरहु वलौ करिहल काफ़िरून। उन्होंने अपने उलमा और मशाइख और मसीह इब्न मरियम को अल्लाह के सिवा खुदा बना लिया, हालांकि उनको ये हुक्म दिया गया था कि खुदाए वाहिद के सिवा किसी की इबादत न करें, उसके सिवा कोई माबूद नहीं और वो उन लोगों के शरीक मुकर्रर करने से पाक है। ये चाहते हैं कि खुदा के नूर को अपने मुंह से फूंक मार कर बुझा दें, और खुदा अपने नूर को पूरा किए बगैर रहने का नहीं, अगरचे काफिरों को बुरा ही लगे। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा वदीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि वलौ करिहल मुशरिकून। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्न कसीरन मिनल अहबारि वर्रुहबानि लयअकुलून अमवाल الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم। वही तो है जिसने अपने पैगंबर को हिदायत और दीन हक देकर भेजा ताकि इस दीन को दुनिया के तमाम दीनों पर गालिब करे, अगरचे काफिर नाखुश ही हों। मोमिनो, अहले किताब की बहुत से आलिम और मशाइख लोगों का माल नाहक खाते और उनको राह खुदा से रोकते हैं, और जो लोग सोना और चांदी जमा करते हैं और उसको खुदा के रास्ते में खर्च नहीं करते, उनको उस दिन के अजाब अलीम की खबर सुना दो। यौम युहमा अलैहा फी नारि जहन्नम फतुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम फज़ूक़ू मा कुन्तुम तक्निज़ून। इन्न इद्दत अश्शुहूर इंदल्लाहि 12 शहरन फी किताबिल्लाहि यौम खलक़स समावाति वल अर्ज़ मिन्हा अर्बअतुन हुरुम ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين। जिस दिन वो माल दोज़ख की आग में खूब गर्म किया जाएगा, फिर उससे उन बखीलों की पेशानियां और पहलू और पीछे दागी जाएंगी और कहा जाएगा कि ये वही है जो तुमने अपने लिए जमा किया था, सो जो तुम जमा करते थे अब उसका मजा चखो। खुदा के नजदीक महीने गिनती में 12 हैं, यानी उस रोज से कि उसने आसमानों और जमीन को पैदा किया। किताबे खुदा में बरस के 12 महीने लिखे हुए हैं, उनमें से 4 महीने अदब के हैं। यही दीन का सीधा रास्ता है। तो इन महीनों में क़िताल नाहक से अपने आप पर जुल्म न करना, और तुम सब के सब मुशरिकों से लड़ो जैसे वो सब के सब तुमसे लड़ते हैं, और जान रखो कि खुदा परहेजगारों के साथ है। इन्नमा नसीउ ज़ियादतुन फिल कुफ्रि युदल्लु बिहि الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين। अमन के किसी महीने को हटाकर आगे पीछे कर देना कुफ्र में इजाफा करता है। इससे काफिर गुमराही में पड़े रहते हैं। एक साल तो इसको हलाल समझ लेते हैं और दूसरे साल हराम, ताकि अदब के महीनों की जो खुदा ने मुकर्रर किए हैं गिनती पूरी कर लें, और जो खुदा ने मना किया है उसको जायज कर लें। उनके बुरे अमाल उनको भले दिखाई देते हैं और खुदा काफिरों को हिदायत नहीं दिया करता। يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قديर। मोमिनो, तुम्हें क्या हुआ है कि जब तुमसे कहा जाता है कि खुदा की राह में जिहाद के लिए निकलो तो तुम काहिली के सबब से जमीन पर गिरे जाते हो, यानी घरों से निकलना नहीं चाहते। क्या तुम आखिरत की नेमतों को छोड़कर दुनिया की जिंदगी पर खुश हो बैठे हो? दुनिया की जिंदगी के फायदे तो आखिरत के मुकाबिल बहुत ही कम हैं। अगर तुम न निकलोगे तो खुदा तुमको बड़ी तकलीफ का अजाब देगा और तुम्हारी जगह और लोग पैदा कर देगा जो खुदा के पूरे फरमाबरदार होंगे और तुम उसको कुछ नुकसान न पहुंचा सकोगे, और खुदा हर चीज पर कुदरत रखता है।
إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون अगर तुम पैगंबर की मदद न करोगे तो खुदा उनका मददगार है। वो वक्त तुमको याद होगा जब इनको काफिरों ने घर से निकाल दिया। उस वक्त दो ही शख्स थे जिनमें एक अबू बकर थे, दूसरे खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब वो दोनों गारे सोर में थे उस वक्त पैगंबर अपने रफीक को तसल्ली देते थे कि गम न करो, खुदा हमारे साथ है। तो खुदा ने उन पर तस्कीन नाजिल फरमाई और उनको ऐसे लश्करों से मदद दी जो तुमको नजर नहीं आते थे और काफिरों की बात को पस्त कर दिया। और बात तो खुदा ही की बुलंद है और खुदा जबरदस्त और हिकमत वाला है। तुम सुर्ख बार हो या गरा बार, यानी माल व असबाब थोड़ा रखते हो या बहुत, घरों से निकल आओ और खुदा के रास्ते में मालो जान से लड़ो। यही तुम्हारे हक में बेहतर है, बशर्ते कि समझो। لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله عنك لم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين। अगर माल गनीमत सहलुल हुसूल और सफर भी हल्का होता तो तुम्हारे साथ शौक से चल देते, लेकिन मुसाफत उनको दूर दराज नजर आई तो उज्र करेंगे और खुदा की कसमें खाएंगे कि अगर हम ताकत रखते तो आपके साथ जरूर निकल पड़ते। ये ऐसे उज्रों से अपने तई हलाक कर रहे हैं और खुदा जानता है कि ये झूठे हैं। खुदा तुम्हें माफ करे, तुमने पेशतर इसके कि तुम पर वो लोग भी जाहिर हो जाते जो सच्चे हैं और वो भी तुम्हें मालूम हो जाते जो झूठे हैं, उनको इजाजत क्यों दी? जो लोग खुदा पर और रोजे आखिरत पर ईमान रखते हैं वो तो तुमसे इजाजत नहीं मांगते कि पीछे रह जाएं, बल्कि चाहते हैं कि अपने माल और जान से जिहाद करें और खुदा परहेजगारों से वाकिफ है। इन्नमा यस्तअज़िनुका الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين। इजाजत वही लोग मांगते हैं जो खुदा पर और पिछले दिन पर ईमान नहीं रखते और उनके दिल शक में पड़े हुए हैं, सो वो अपने शक में डामाडोल हो रहे हैं। और अगर वो निकलने का इरादा करते तो उसके लिए सामान तैयार करते, लेकिन खुदा ने उनका उठना और निकलना पसंद ही न किया तो उनको हिलने जुलने ही न दिया और उनसे कह दिया गया कि जहां माजूर बैठे हैं तुम भी उनके साथ बैठे रहो। अगर वो तुम में शामिल होकर निकल भी खड़े होते तो तुम्हारे हक में शरारत करते और तुम में फसाद डलवाने की गरज से दौड़े दौड़े फिरते, और तुम में उनके जासूस भी हैं और खुदा जालिमों को खूब जानता है। لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين। ये पहले भी तालिब फसाद रहे हैं और बहुत सी बातों में तुम्हारे लिए उलट फेर करते रहे हैं, यहाँ तक कि हक आ पहुंचा और खुदा का हुक्म गालिब हुआ और वो बुरा मानते ही रह गए। और उनमें कोई ऐसा भी है जो कहता है कि मुझे तो इजाजत ही दीजिए और आफत में न डालिए। देखो ये आफत में पड़ गए हैं और दोज़ख सब काफिरों को घेरे हुए है। इन तुसिबका हसनतुन तसुहम
وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर तुमको आसाइश हासिल होती है तो उनको बुरी लगती है, और अगर कोई मुश्किल पड़ती है तो कहते हैं कि हमने अपना काम पहले ही दुरुस्त कर लिया था, और खुशियां मनाते लौट जाते हैं। कह दो कि हमको कोई मुसीबत नहीं पहुंच सकती बजुज इसके जो खुदा ने हमारे लिए लिख दी हो, वही हमारा कारसाज है और मोमिनों को खुदा ही का भरोसा रखना चाहिए। कह दो कि तुम हमारे हक में दो भलाइयों में से एक के मुंतजिर हो, और हम तुम्हारे हक में इस बात के मुंतजिर हैं कि खुदा या तो अपने पास से तुम पर कोई अजाब नाजिल करे या हमारे हाथों से अजाब दिलवाए, तो तुम भी इंतजार करो, हम भी तुम्हारे साथ इंतजार करते हैं। قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون कह दो कि तुम माल खुशी से खर्च करो या नाखुशी से, तुमसे हरगिज कबूल नहीं किया जाएगा। तुम नाफरमान लोग हो, और उनके खर्चे अमवाल के कबूल होने से कोई चीज माने नहीं होती सिवा इसके कि उन्होंने खुदा से और उसके रसूल से कुफ्र किया, और नमाज को आते हैं तो सुस्त काहिल होकर, और खर्च करते हैं तो नाखुशी से। तुम उनके माल और औलाद से ताज्जुब न करना, खुदा चाहता है कि उन चीजों से दुनिया की जिंदगी में उनको अजाब दे, और जब उनकी जान निकले तो उस वक्त भी वो काफिर ही हों। वयहलिफून बिल्लाहि इन्नहुम लमिनकुम वमा हुम मिनकुम वलाकिन्नहुम कौमुन यफ्रकून लौ यजिदून मलजअन औ मगारातिन औ मुद्दखलन लवल्लौ इलैहि वहुम यजमहून वमिनहुम मन यल्मिजुक फि الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون। और खुदा की कसमें खाते हैं कि वो तुम ही में से हैं, हालांकि वो तुम में से नहीं हैं। असल ये है कि ये डरपोक लोग हैं। अगर उनको कोई बचाव की जगह जैसे कला या गारो मुगाक या जमीन के अंदर घुसने की जगह मिल जाए तो उसी तरफ रस्सियां तुड़ाते हुए भाग जाएं। और उनमें बाज ऐसे भी हैं कि तकसीम सदकात में तुम पर तानाजनी करते हैं। अगर उनको इसमें से खातिर खा मिल जाए तो खुश रहें, और अगर इस कदर न मिले तो झट खफा हो जाएं। और अगर वो उस पर खुश रहते जो खुदा और उसके रसूल ने उनको दिया था, और कहते कि हमें खुदा काफी है और खुदा अपने फजल से और उसके पैगंबर अपनी मेहरबानी से हमें फिर दे देंगे, और हमें तो खुदा ही की ख्वाहिश है, तो उनके हक में बेहतर होता। इन्नमा अस्सदक़ातु लिलफ़ुक़राኢ वल्मसाकीनि वल्आमिलीना अलैहा والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم। सदक़ात यानी ज़कात और खैरात तो मुफलिसों और मोहताजों और कारकुनान सदक़ात का हक है, और उन लोगों का जिनकी तालीफ क़ुलूब मंजूर है, और गुलामों के आज़ाद कराने में और कर्जदारों के कर्ज अदा करने में और खुदा की राह में और मुसाफिरों की मदद में भी ये माल खर्च करना चाहिए। ये हुकूक खुदा की तरफ से मुकर्रर कर दिए गए हैं, और खुदा जानने वाला और हिकमत वाला है। और उनमें बाज ऐसे हैं जो पैगंबर को ईज़ा देते हैं और कहते हैं कि ये शख्स निरा कान है। इनसे कह दो कि वो कान है तो तुम्हारी भलाई के लिए, वो खुदा का और मोमिनों की बात का यकीन रखता है, और जो लोग तुम में ईमान लाए हैं उनके लिए रहमत है, और जो लोग रसूल खुदा को रंज पहुंचाते हैं उनके लिए अज़ाब अलीम तैयार है।
يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون मोमिनो, ये लोग तुम्हारे सामने खुदा की कस्में खाते हैं ताकि तुमको खुश कर दें। हालांकि ये दिल से मोमिन होते तो खुदा और उसके पैगंबर खुश करने के ज्यादा मुस्तहिक हैं। क्या इन लोगों को मालूम नहीं कि जो शख्स खुदा और उसके रसूल से मुकाबला करता है तो उसके लिए जहन्नम की आग तैयार है जिसमें वो हमेशा जलता रहेगा। ये बड़ी रुसवाई है। मुनाफिक डरते रहते हैं कि उनके पैगंबर पर कहीं कोई ऐसी सूरत न उतर आए कि उनके दिल की बातों को इन मुसलमानों पर जाहिर कर दे। कह दो कि हंसी किए जाओ, जिस बात से तुम डरते हो खुदा उसको जरूर जाहिर कर देगा। और अगर तुम उनसे इस बारे में दरियाफ्त करो तो कहेंगे कि हम तो यूं ही बातचीत और दिल लगी करते थे। कहो, क्या तुम खुदा और उसकी आयतों और उसके रसूल से हंसी करते थे? ला तअतदिरू क़द कफ़रतुम बअद ईमानिकुम इन नअफ़ु अन ताइफ़तिन मिनकुम नुअज़्ज़िब ताइफ़तन बिअन्नहुम कानू मुजरिमीन المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون बहाने मत बनाओ, तुम ईमान लाने के बाद काफिर हो चुके हो। अगर हम तुम में से एक जमात को मुआफ कर दें तो दूसरी जमात को सजा भी देंगे क्योंकि वो गुनाह करते रहे हैं। मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें एक दूसरे के हम जिन्स यानी एक ही तरह के हैं कि बुरे काम करने को कहते और नेक कामों से मना करते और खर्च करने से हाथ बंद किए रहते हैं। उन्होंने खुदा को भुला दिया तो खुदा ने उनको भुला दिया। बेशक मुनाफिक नाफरमान है। وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون अल्लाह ने मुनाफिक मर्दों और मुनाफिक औरतों और काफिरों से आतिश जहन्नम का वादा किया है जिसमें हमेशा जलते रहेंगे। वही उनके लायक है और खुदा ने उन पर लानत कर दी है और उनके लिए हमेशा का अजाब तैयार है। तुम मुनाफिक लोग उन लोगों की तरह हो जो तुमसे पहले हो चुके हैं। वो तुमसे बहुत ताकतवर और माल और औलाद में कहीं ज्यादा थे तो वो अपने हिस्से से बहरयाब हो चुके। सो जिस तरह तुमसे पहले लोग अपने हिस्से से फायदा उठा चुके हैं उसी तरह तुमने अपने हिस्से से फायदा उठा लिया। और जिस तरह वो बातिल में डूबे रहे उसी तरह तुम बातिल में डूबे रहे। ये वो लोग हैं जिनके आमाल दुनिया और आखिरत में जाया हो गए और यही नुकसान उठाने वाले हैं। अलम यअतिहिम नबअु الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون क्या इनको उन लोगों के हालात की खबर नहीं पहुंची जो उनसे पहले थे, यानी नूह और आद और समूद की कौम और इब्राहिम की कौम और मदियन वाले और उल्टी हुई बस्तियों वाले। उनके पास पैगंबर निशानियां ले लेकर आए और खुदा तो ऐसा न था कि उन पर जुल्म करता, लेकिन वही अपने आप पर जुल्म करते थे। والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم। और मोमिन मर्द और मोमिन औरतें एक दूसरे के दोस्त हैं कि अच्छे काम करने को कहते और बुरी बातों से मना करते और नमाज पढ़ते
और ज़कात देते और खुदा और उसके पैगंबर की इताअत करते हैं, यही लोग हैं जिन पर खुदा रहम करेगा। बेशक खुदा गालिब हिकमत वाला है। وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. खुदा ने मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों से बहिश्तों का वादा किया है जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, वो उनमें हमेशा रहेंगे, और बहिश्त हाय जाविदानी में नफीस मकानात का वादा किया है। और खुदा की रजामंदी तो सबसे बढ़कर नेमत है, यही बड़ी कामयाबी है। ऐ पैगंबर, काफिरों और मुनाफिकों से लड़ो और उन पर सख्ती करो, और उनका ठिकाना दोज़ख है और वो बुरी जगह है। يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصيर। ये खुदा की कसमें खाते हैं कि इन्होंने तो कुछ नहीं कहा, हालांकि उन्होंने कुफ्र का कलिमा कहा है, और ये इस्लाम लाने के बाद काफिर हो गए हैं और ऐसी बात का कस्द कर चुके हैं जिस पर कुदरत नहीं पा सके। और इन्होंने मुसलमानों में ऐब ही कौन सा देखा है सिवा इसके कि खुदा ने अपने फजल से और उसके पैगंबर ने अपनी मेहरबानी से इनको दौलतमंद कर दिया है। तो अगर ये लोग तौबा कर लें तो इनके हक में बेहतर होगा, और अगर मुंह फेर लें तो खुदा इनको दुनिया और आखिरत में दुख देने वाला अजाब देगा, और जमीन में इनका कोई दोस्त और मददगार न होगा। ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون। और इनमें बाज ऐसे हैं जिन्होंने खुदा से अहद किया था कि अगर वो हमको अपनी मेहरबानी से माल अता फरमाएगा तो हम जरूर खैरात किया करेंगे और नेकुकारों में हो जाएंगे। लेकिन जब खुदा ने इनको अपने फजल से माल दिया तो उसमें बुख्ल करने लगे और अपने अहद से रूगर्दानी करके फिर बैठे। तो खुदा ने उसका अंजाम ये किया कि उस रोज तक के लिए जिसमें वो खुदा के रूबरू हाजिर होंगे उनके दिलों में निफाक डाल दिया, इसलिए कि उन्होंने खुदा से जो वादा किया था उसके खिलाफ किया, और इसलिए कि वो झूठ बोलते थे। ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم। क्या उनको मालूम नहीं कि खुदा उनके भेदों और मशवरों तक से वाकिफ है, और ये कि वो गैब की बातें जानने वाला है। जो जी इस्तिताअत मुसलमान दिल खोल कर खैरात करते हैं, और जो बेचारे गरीब सिर्फ इतना ही कमा सकते हैं जितनी मजदूरी करते और थोड़ी सी कमाई में से भी खर्च करते हैं, उन पर जो मुनाफिक तान करते और हंसते हैं, खुदा उन पर हंसता है और उनके लिए तकलीफ देने वाला अजाब तैयार है। استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. तुम उनके लिए बख्शिश मांगो या न मांगो, बात एक है। अगर उनके लिए 70 दफा भी बख्शिश मांगोगे तो भी खुदा उनको नहीं बख्शेगा। ये इसलिए कि उन्होंने खुदा और उसके रसूल से कुफ्र किया, और खुदा नाफरमान लोगों को हिदायत नहीं देता। जो लोग ग़ज़वा तबूक में पीछे रह गए वो पैगंबर खुदा की मर्जी के खिलाफ बैठ रहने से खुश हुए,
और इस बात को नापसंद किया कि खुदा की राह में अपने माल और जान से जिहाद करे, और औरों से भी कहने लगे कि गर्मी में मत निकलना। उनसे कह दो कि दोज़ख की आग इससे कहीं ज्यादा गर्म है। काश ये इस बात को समझते। ये दुनिया में थोड़ा सा हंस लें और आखिरत में इनको उन आमाल के बदले जो करते रहे हैं बहुत सा रोना होगा। فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون। फिर अगर खुदा तुमको उनमें से किसी गिरोह की तरफ ले जाए और वो तुमसे निकलने की इजाजत तलब करें तो कह देना कि तुम मेरे साथ हरगिज नहीं निकलोगे और न मेरे साथ मददगार होकर दुश्मन से लड़ाई करोगे। तुम पहली दफा बैठ रहने से खुश हुए तो अब भी पीछे रहने वालों के साथ बैठे रहो। और ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनमें से कोई मर जाए तो कभी उसके जनाजे पर नमाज न पढ़ना और न उसकी कब्र पर जाकर खड़े होना। ये खुदा और उसके रसूल के साथ कुफ्र करते रहे और मरे भी तो नाफरमान ही मरे। वला तुअज्जिबक अमवालुहुम व औलादुहुम इन्नमा युरीदुल्लाहु अन युअज़्ज़िबहुम बिहा फिद दुन्या व तज़हक़ अनफुसुहुम व हुम काफ़िरून व इज़ा उन्ज़िलत सूरतुन अन आमिनू बिल्लाहि وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون। और उनके माल और औलाद से ताज्जुब न करना। इन चीजों से खुदा ये चाहता है कि उनको दुनिया में अजाब करे और जब उनकी जान निकले तो उस वक्त भी ये काफिर ही हों। कोई सूरत नाजिल होती है कि खुदा पर ईमान लाओ और उसके रसूल के साथ होकर लड़ाई करो तो जो उनमें दौलतमंद हैं वो तुमसे इजाजत तलब करते हैं और कहते हैं कि हमें तो रहने ही दीजिए कि जो लोग घरों में रहेंगे हम भी उनके साथ रहें। ये इस बात से खुश हैं कि औरतों के साथ जो पीछे रह जाती हैं घरों में बैठ रहें। उनके दिलों पर मोहर लगा दी गई है तो ये समझते ही नहीं। لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم। लेकिन पैगंबर और जो लोग उनके साथ ईमान लाए सब अपने माल और जान से लड़े। उन्हीं लोगों के लिए भलाइयां हैं और यही मुराद पाने वाले हैं। खुदा ने उनके लिए बागात तैयार कर रखे हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, हमेशा उनमें रहेंगे। ये बड़ी कामयाबी है। और सहरा नशीनों में से भी कुछ लोग उज़्र करते हुए तुम्हारे पास आए कि उनको भी इजाजत दी जाए और जिन्होंने खुदा और उसके रसूल से झूठ बोला वो घर में बैठ रहे। सो जो लोग उनमें से काफिर हुए हैं उनको दुख देने वाला अज़ाब पहुंचेगा। ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون। न तो ज़ईफ़ों पर कुछ गुनाह है और न बीमारों पर और न उन पर जिनके पास खर्च मौजूद नहीं कि शरीक जिहाद हों, यानी जबकि खुदा और उसके रसूल के खैरंदेश और दिल से उनके साथ हो। नेकुकारों पर किसी तरह का इल्जाम नहीं है और खुदा बख्शने वाला मेहरबान है। और न उन बेसरो सामान लोगों पर इल्जाम है कि तुम्हारे पास आए कि उनको सवारी दो और तुमने कहा कि मेरे पास कोई ऐसी चीज नहीं जिस पर तुमको सवार करूं, तो वो लौट गए और इस गम से कि उनके पास खर्च मौजूद न था उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। इन्नमा अस्सबीलु अला अल्लज़ीना यस्तअज़िनूनक वहुम अग़निया रदू बिअन यकूनू मअल ख़वालिफ़ व तबअ अल्लाहु अला क़ुलूबिहिम फ़हुम ला यअलमून। يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون। इल्जाम तो उन लोगों पर है जो दौलतमंद हैं
और फिर तुमसे इजाजत तलब करते हैं, यानी इस बात से खुश हैं कि औरतों के साथ जो पीछे रह जाती हैं घरों में बैठ रही। खुदा ने उनके दिलों पर मोहर कर दी है, बस वो समझते ही नहीं। जब तुम उनके पास वापस जाओगे तो तुमसे उज्र करेंगे, तुम कहना कि उज्र मत करो, हम हरगिज तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। खुदा ने हमको तुम्हारे सब हालात बता दिए हैं और अभी खुदा और उसका रसूल तुम्हारे अमलों को और देखेंगे, फिर तुम गायब व हाजिर के जानने वाले खुदाए वाहिद की तरफ लौटाए जाओगे और जो अमल तुम करते रहे हो वो सब तुम्हें बताएगा। सयहलिफून बिल्लाहि लकुम इज़ा इंक़लबतुम इलैहिम लितुअरिदू अन्हुम फ़अरिदू अन्हुम इन्नहुम रिजसुन व मअवाहुम जहन्नम जज़ाअन बिमा कानू यक्सिबून यहलिफून लकुम लितरदौ अन्हुम फ़इन तरदौ अन्हुम फ़इन्नल्लाह ला यर्दा अनिल क़ौमिल फ़ासिक़ीन الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم। जब तुम उनके पास लौट कर जाओगे तो तुम्हारे रूबरू खुदा की कसमें खाएंगे ताकि तुम उनसे दरगुजर करो, सो उनकी तरफ इल्तिफात न करना, ये नापाक हैं और जो काम ये करते रहे हैं उनके बदले उनका ठिकाना दोज़ख है। ये तुम्हारे आगे कसमें खाएंगे ताकि तुम उनसे खुश हो जाओ, लेकिन अगर तुम उनसे खुश हो जाओगे तो खुदा तुम नाफरमान लोगों से खुश नहीं होता। देहाती लोग सख्त काफिर और सख्त मुनाफिक हैं और इस काबिल है कि जो अहकाम शरीयत खुदा ने अपने रसूल पर नाजिल फरमाए हैं उनसे वाकिफ ही न हो, और खुदा जानने वाला और हिकमत वाला है। ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم। और बाज देहाती ऐसे हैं कि जो कुछ खर्च करते हैं उसे तावान समझते हैं और तुम्हारे हक में मुसीबतों के मुंतज़िर हैं, उन्हीं पर बुरी मुसीबत वाक़िअ हो, और खुदा सुनने वाला और जानने वाला है। और बाज देहाती ऐसे हैं कि खुदा पर और रोज़े आखिरत पर ईमान रखते हैं और जो कुछ खर्च करते हैं उसको खुदा की क़ुर्बत और पैगंबर की दुआओं का जरिया समझते हैं। देखो वो बेशुबा उनके लिए मुजिबे क़ुर्बत है, खुदा उनको अनक़रीब अपनी रहमत में दाखिल करेगा, बेशक खुदा बख्शने वाला मेहरबान है। والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم। जिन लोगों ने सबकत की यानी सबसे पहले ईमान लाए, मुहाजिरीन में से भी और अंसार में से भी, और जिन्होंने नेकुकारी के साथ उनकी पैरवी की, खुदा उनसे खुश है और वो खुदा से खुश है, और उसने उनके लिए बागात तैयार किए हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं और हमेशा उनमें रहेंगे। ये बड़ी कामयाबी है। और तुम्हारे गिरदोनवाह के बाज देहाती मुनाफिक हैं और बाज मदीने वाले भी निफाक पर अड़े हुए हैं। तुम उन्हें नहीं जानते, हम जानते हैं। हम उनको दोहरा अजाब देंगे, फिर वो बड़े अजाब की तरफ लौटाए जाएंगे। وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم। और कुछ और लोग हैं कि अपने गुनाहों का साफ इकरार करते हैं, उन्होंने अच्छे और बुरे अमलों को मिला जुला दिया था। करीब है कि खुदा उन पर मेहरबानी से तवज्जो फरमाए, बेशक खुदा बख्शने वाला मेहरबान है। उनके माल में से ज़कात कबूल कर लो कि उससे तुम उनको जाहिर में भी पाक और बातिन में भी पाकीज़ा करते हो, और उनके हक में दुआएं खैर करो कि तुम्हारी दुआ उनके लिए मुजिबे तस्कीन है, और खुदा सुनने वाला जानने वाला है।
क्या ये लोग नहीं जानते कि खुदा ही अपने बंदों से तौबा कबूल फरमाता और सदकात और खैरात लेता है, और बेशक खुदा ही तौबा कबूल करने वाला मेहरबान है। وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم। और उनसे कह दो कि अमल किए जाओ, खुदा और उसका रसूल और मोमिन सब तुम्हारे अमलों को देख लेंगे, और तुम गायब व हाजिर के जानने वाले खुदाए वाहिद की तरफ लौटाए जाओगे। फिर जो कुछ तुम करते रहे हो वो सब तुमको बता देगा। और कुछ और लोग हैं जिनका काम खुदा के हुक्म पर मौकूफ है, चाहे उनको अजाब दे और चाहे माफ कर दे, और खुदा जानने वाला हिकमत वाला है। والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين। और उनमें ऐसे भी हैं जिन्होंने इस गरज से मस्जिद बनाई है कि जरर पहुंचाएं और कुफ्र करें और मोमिनों में तफरीका डालें, और जो लोग खुदा और उसके रसूल से पहले जंग कर चुके हैं उनके लिए घात की जगह बनाएं, और कसमें खाएंगे कि हमारा मकसूद तो सिर्फ भलाई थी, मगर खुदा गवाही देता है कि ये झूठे हैं। तुम उस मस्जिद में कभी जाकर खड़े भी न होना, अलबत्ता वो मस्जिद जिसकी बुनियाद पहले दिन से तकवा पर रखी गई है इस काबिल है कि उसमें जाया और नमाज पढ़ाया करो। इसमें ऐसे लोग हैं जो पाक रहने को पसंद करते हैं, और खुदा पाक रहने वालों ही को पसंद करता है। أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أمن أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم। भला जिस शख्स ने अपनी इमारत की बुनियाद खुदा के खौफ और उसकी रजामंदी पर रखी वो अच्छा है, या वो जिसने अपनी इमारत की बुनियाद गिर जाने वाली खाई के किनारे पर रखी कि वो उसको दोज़ख की आग में ले गिरी, और खुदा जालिम लोगों को हिदायत नहीं देता। ये इमारत जो उन्होंने बनाई है हमेशा उनके दिलों में मुजीब खिलजान रहेगी और उनको मुतरद्दिद रखेगी, मगर ये कि उनके दिल पाश पाश हो जाएं, और खुदा जानने वाला हिकमत वाला है। إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم। खुदा ने मोमिनों से उनकी जानें और उनके माल खरीद लिए हैं और उसके एवज में उनके लिए बहिश्त तैयार की है। ये लोग खुदा की राह में लड़ते हैं तो मारते भी हैं और मारे जाते भी हैं। ये तौरात और इंजील और कुरान में सच्चा वादा है जिसका पूरा करना उसे जरूर है, और खुदा से ज्यादा वादा पूरा करने वाला कौन है। तो जो सौदा तुमने उससे किया है उससे खुश रहो, और यही बड़ी कामयाबी है। التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين। तौबा करने वाले, इबादत करने वाले, हम्द करने वाले, रोजा रखने वाले, रुकू करने वाले, सजदा करने वाले, नेक कामों का अमर करने वाले, बुरी बातों से मना करने वाले, खुदा की हदों की हिफाजत करने वाले, यही मोमिन लोग हैं। और ऐ पैगंबर मोमिनों को बहिश्त की खुशखबरी सुना दो। ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه
فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. पैगंबर और मुसलमानों को शाया नहीं कि जब उन पर जाहिर हो गया कि मुशरिक अहले दोज़ख हैं तो उनके लिए बख्शिश मांगे, गो वो उनके क़राबतदार ही हैं। और इब्राहिम का अपने बाप के लिए बख्शिश मांगना तो एक वादे के सबब था जो वो उससे कर चुके थे, लेकिन जब उनको मालूम हो गया कि वो खुदा का दुश्मन है तो उससे बेजार हो गए। कुछ शक नहीं कि इब्राहिम बड़े नर्म दिल और मुतहम्मिल थे। وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. और खुदा ऐसा नहीं कि किसी कौम को हिदायत देने के बाद गुमराह कर दे जब तक उनको वो चीज न बता दे जिससे वो परहेज करें। बेशक खुदा हर चीज से वाकिफ है। खुदा ही है जिसके लिए आसमान और जमीन की बादशाहत है, वही जिंदगानी बख्शता और वही मौत देता है, और खुदा के सिवा तुम्हारा कोई दोस्त और मददगार नहीं है। لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. बेशक खुदा ने पैगंबर पर मेहरबानी की और मुहाजिरीन और अंसार पर जो बावजूद इसके कि उनमें से बाजों के दिल जल्द फिर जाने को थे मुश्किल की घड़ी में पैगंबर के साथ रहे। फिर खुदा ने उन पर मेहरबानी फरमाई, बेशक वो उन पर निहायत शफकत करने वाला और मेहरबान है। और उन तीनों पर भी जिनका मामला मुलतवी किया गया था, यहाँ तक कि जब जमीन बावजूद फराखी के उन पर तंग हो गई और उनकी जानें भी उन पर दूभर हो गईं और उन्होंने जान लिया कि खुदा के हाथ से खुद उसके सिवा कोई पनाह नहीं, फिर खुदा ने उन पर मेहरबानी की ताकि तौबा करें। बेशक खुदा तौबा कबूल करने वाला मेहरबान है। या अय्युहल्लज़ीन आमनु इत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस्सादिक़ीन ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. अहले ईमान, खुदा से डरते रहो और रास्तबाजों के साथ रहो। अहले मदीना को और जो उनके आसपास देहाती रहते हैं उनको शाया न था कि पैगंबर खुदा से पीछे रह जाएं, और न ये कि अपनी जानों को उनकी जान से ज्यादा अजीज रखें। ये इसलिए कि उन्हें खुदा की राह में जो तकलीफ पहुंचती है, प्यास की या मेहनत की या भूख की, या वो ऐसी जगह चलते हैं कि काफिरों को गुस्सा आए या दुश्मनों से कोई चीज लेते हैं, तो हर बात पर उनके लिए अमल नेक लिखा जाता है। कुछ शक नहीं कि खुदा नेकुकारों का अज्र जाया नहीं करता। वला युनफिकून नफक़तन सग़ीरतन वला कबीरतन वला यक़तऊन वादियन इल्ला कुतिब लहुम लियजज़ियहुमुल्लाहु अहसन मा कानू यअमलून वमा कान अलमुअमिनून लियंफिरू काफ़्फ़ह فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. और इसी तरह वो जो खर्च करते हैं, थोड़ा या बहुत या कोई मैदान तय करते हैं, तो ये सब कुछ उनके लिए आमाल सालेह में लिख लिया जाता है ताकि खुदा उनको उनके आमाल का बहुत अच्छा बदला दे। और ये तो हो नहीं सकता कि मोमिन सब के सब निकल आए, तो यूं क्यों न किया कि हर एक जमात में से चंद अशखास निकल जाते ताकि दीन का इल्म सीखते और उसमें समझ पैदा करते, और जब अपनी कौम की तरफ वापस आते
तो उनको डर सुनाते ताकि वो हज़्र करते। يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون ऐ अहले ईमान, अपने नजदीक के रहने वाले काफिरों से जंग करो और चाहिए कि वो तुम में सख्ती यानी मेहनत और कुव्वत जंग मालूमात करें और जान रखो कि खुदा परहेजगारों के साथ है। और जब कोई सूरत नाजिल होती है तो बाज मुनाफिक इस्तेहजा करते और पूछते हैं कि इस सूरत ने तुम में से किसका ईमान ज्यादा किया है। सो जो ईमान वाले हैं उनका तो ईमान ज्यादा किया और वो खुश होते हैं। وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون और जिनके दिलों में मरज है उनके हक में खुब्स पर खुब्स ज्यादा किया और वो मरे भी तो काफिर के काफिर। क्या ये देखते नहीं कि ये हर साल एक या दो बार बला में फंसा दिए जाते हैं, फिर भी तौबा नहीं करते और ना नसीहत पकड़ते। और जब कोई सूरत नाजिल होती है तो एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और पूछते हैं कि भला तुम्हें कोई देखता है, फिर जाते हैं खुदा ने उनके दिलों को फेर रखा है, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं कि समझ से काम नहीं लेते। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिलमुमिनीन रऊफुर रहीम फ़इन तवल्लव फ़क़ुल हस्बियल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। लोगों, तुम्हारे पास तुम्ही में से एक पैगंबर आए हैं, तुम्हारी तकलीफ उनको गरा मालूम होती है और तुम्हारी भलाई के बहुत ख्वाहिशमंद हैं और मोमिनों पर निहायत शफकत करने वाले और मेहरबान हैं। फिर अगर ये लोग फिर जाएं और न माने तो कह दो कि खुदा मुझे किफायत करता है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, उसी पर मेरा भरोसा है और वही अर्श अजीम का मालिक है।